first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Good morning, everyone. I, Sukriti Arora, Assistant Professor, DME, welcome you all to the Session Orientation Program 2021, Contemporary Media Scenario, Challenges and Opportunities. For the second consecutive year, DME Media School is organizing this program with the motive of apprising students about their subjects in the upcoming semester and also prepare them for a career in those particular fields. Such broad visions have made Delhi Metropolitan Education an A-grade premier institute. DME is affiliated with Guru Gobind Singh Indraprasth University and approved by Bar Council of India. The institute offers undergraduate courses of BBA, BA LLB, BBA LLB, and BA JMC. Its branch, DME Media School, is one of the most promising media education centers in the country that focuses on the growth of its students as well as faculty through academic and co-curricular activities. Even in the face of these arduous circumstances, the school has ensured that the teaching-learning process goes uninterrupted and more value can be added to the existing curriculum. DME Media School is a pioneer in organizing successful events both offline and online. Since the pandemic hit in 2020, we have organized a plethora of webinars, workshops, chat shows, FDPs, and much more. We also organized our flagship programs, Cineast International Film Festival of India, Media Fest named Ritika, and more recently, the 4th edition of our International Media Conference, ICANN, as a 10-day digital live international affair. The school also organizes monthly BG Varghese lecture series with eminent media experts who deliver special lectures on subjects of contemporary value. At the heart of our zealous efforts are the students of Media School who are equally enthusiastic and enterprising in their approach. We are glad to see them keeping their morale high despite the unforeseen hardships. We welcome you all to the new semester. And now I invite Dr. Amrish Saxena, Dean, DME Media School, to shed some light on the theme and purpose of this program and to welcome our keynote speaker, Mr. Ashok Srivastav. Sir, over to you. Thank you, Sukriti. This is indeed a great day that like last year, we are starting with this session orientation program. Rather, I should say we have already started, but then we divided into two segments. The first segment happened last week, wherein the faculty members took sessions for the orientation in different papers that the students are taking up in the 3rd semester and the 5th semester. Because normally what happens whenever the new batch joins, it has been customary in almost all the institutions that we organize the orientation program, but we believed that this is a process which should continue all through all 3 years, and that is how last year we decided that we should have a session orientation program even for the students who are joining the 2nd year after completing their 1st year and those who are joining the 3rd year after finishing the 2nd year, because this whole BJMC program, this is divided into different semesters and every semester has different kind of papers. So the students need to be sensitized in the subjects that they are taking up in a particular semester. So this year we added one more thing as compared to what we did last year. Last year it was a 1-week program, but this year
we divided it into two segments. And as I told you already last week, we had the internal sessions in all the papers. And then this week we are having these sessions with external experts. Now, as far as external experts are concerned, what we have tried to do, despite all these adverse circumstances, we tried to encash on this as an opportunity, and that is how we have invited experts from the industry, from the academics, many such experts from outside Delhi. So we have experts from Mumbai, we have experts from Chennai, we have experts from Bangalore. So that is how these experts are there. But to start with, we wanted that there has to be some eminent person who can actually inspire the students, who can guide the students at the outset. And that is how we have this session, which is a combined session of the second year and the third year. And for this session, we have invited Mr. Ashok Srivastava, who is an eminent journalist, who has a long career in journalism, working at different levels. And he is one person who has shaped the DD News for the last so many years. And if I talk about recently, he has been an anchor, primetime anchor from long years. But then recently he acquired new positions. So firstly, he was appointed as consulting editor, and then he was promoted as a senior consulting editor, which means that whatever you find on DD News, the conceptualization part, the execution part, all that is in his hand. And we all know, despite there's so many news channels all across in different languages, Hindi, English, but then DD News is one such channel which is the most prevalent or the most available channel in all the country, whole of the country. And even people who cannot afford cable TV or DTH or any such service, for them, this is the mostly available platform. So its penetration is much more as compared to all other news channels. And the kind of programs, the quality of news bulletins and the news-based programs, the credit for that goes to Mr. Ashok Srivastava. So we are lucky that he has accepted our request to be in this session and making this a keynote address of this session orientation program, talking about the scenario, the contemporary scenario of media education in the of this media industry in the country, media sector in the country, and then whatever challenges that we are facing and whatever prospects are there in the media sector. All that information will definitely be enlightening to all the teachers and the students who are there in this session. So I welcome Mr. Ashok Srivastava to this session. And then I hand it over to Sukriti. Thank you, sir. Indeed, Mr. Ashok Srivastava has a glorious profile, and I'd like our students to know more about him. As Dr. Ambrish Saxena has already mentioned, Mr. Ashok Srivastava is a renowned television anchor, journalist, and writer, currently working as senior consulting editor with DD News. With over 3 decades of experience in print as well as broadcast media, Mr. Srivastava has established himself as a credible primetime anchor. As a reporter, Sir has covered landmark events in the history of India, such as the fall of Babri Masjid in 1992, the siege of Hazrat Bal Mosque in 93, abrogation of Article 370, many general elections, and much more. His first journalistic award was conferred onto him by former Prime Minister late Shri Atal Bihari Vajpayee for balance and objectivity in reporting in Kashmir. Since then, many achievements have followed him in his long-standing career. He joined DD News in 2002 and was selected as the best reporter of Doordarshan only a year later. He was also named the best anchor for Doordarshan in 2005 and 2006. His program, Janne Ka Haq, an advocacy program on right to information, was accorded the National RTI Award. Mr. Srivastava has also published a book titled Narendra Modi Censored in 2019, which has been widely acclaimed across the world.
Furthermore, Sir is also associated with the field of media education through institutes like IIMC, Assam University, and Makanlal Chaturvedi University. I can go on telling everybody more and more about him. We can consume the entire session with it. But without further ado, I would now like to welcome Sir. We are honored to have you with us. So please enlighten our gathering. बहुत बहुत शुक्रिया सुकृति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरीश सर, मुझे इस अवसर को देने के लिए, आपके इतने ज्यादा जो उत्साही स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रूबरू होने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुष्मिता जी, आपको मेरा नमस्कार। और जो तमाम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी इस सेशन में जुड़े हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। अभी जब सुकृति मैम जब 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 मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मुझे अचानक से, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, मैं आपको आज दिल से बता रहा हूँ, अचानक से मुझे याद आया कि मैंने कौन कौन सी चीजें जो है ना, मतलब कर ली, मतलब मीडिया में रह करके रिपोर्टिंग, एंकरिंग, जानने का हक का जिक्र किया, वो एडवोकेसी प्रोग्राम भी करता था मैं, प्राइम टाइम पे न्यूज भी, सीधा सीधा न्यूज जो खबर है वो खबर को उस तरह से देना, वो भी काम किया। और अब जो मैं डिबेट शो भी करता हूँ, तो मैं यही सोच रहा था कि कौन कौन से पड़ाव से जिंदगी निकल गई, पता ही नहीं चला, 3 दशक हो गए पूरे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे कि मैं खुद मीडिया एजुकेशन से जुड़ा रहा था, और मैं कुछ मीडिया एजुकेशन से जहाँ पे जुड़ा रहा, जहाँ जाता रहा, पहले कई जगह जाता था, लेकिन फिर समय की सीमाएं बन गई, तो बहुत ज्यादा जगह नहीं जाना होता था। लेकिन मैं हमेशा मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जाता था, तो मैं ये देखता था, मुझे कई बार दुख भी होता था, मैं कई बार ओपनली कह भी चुका हूँ कि हिंदुस्तान में कुकुर मुत्तों की तरह जो है मीडिया इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल पा रही, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ। और मैं ये भी बता दूं, ये मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा नहीं था, ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पत्रकारिता का, मीडिया का कोई फॉर्मल जो है मैंने एजुकेशन नहीं ली है, बिल्कुल नहीं लिया मैं मीडिया की किसी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को मैंने नहीं लिया। मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एमए कर रहा था, भाषा में कर रहा था, क्योंकि जो मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर आपको पत्रकारिता में कुछ करना है, क्योंकि जब 30, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस दौर की, जब 30 साल पहले, जबकि टेलीविजन मीडिया में कुछ नहीं होता था, 24 घंटे के न्यूज चैनल नहीं होते थे, सिर्फ अखबार होते थे। तो उस वक्त मुझे, मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको अगर पत्रकार बनना है, तो फिर आपको अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है वो एक पत्रकार का वेपन होता है, हथियार होता है। तो मैंने फिर भाषा से, मैंने हिंदी में एमए जो है वो मैंने करनी शुरू की थी। लेकिन जब मैं हिंदी में एमए कर रहा था, उसी दौरान उसी दौरान मुझे एक जॉब ऑफर आया, एक अखबार से मुझे एक नौकरी का ऑफर आया, और मैंने वो जॉब शुरू कर दी। हालांकि उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, जब मैं बल्कि कॉलेज में था, तब भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, और मैं अखबारों के लिए लिखता था, क्योंकि एक मन में था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मैं एक पत्रकार बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं। मुझे कुछ लोगों ने मुझे कहा, खास करके मेरे पिता ने और बाकी लोगों ने मुझे कहा कि मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं एक पत्रकार बन सकता हूँ। तो मैंने इसलिए जो है पत्रकारिता की तरफ थोड़ा सा लिखना शुरू किया। मैं फ्रीलांसिंग करता था, नवभारत टाइम्स जैसे उस समय का हिंदी का आज भी सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में, वहां मेरे रेगुलर लेख छपते थे जब मैं कॉलेज में था, कुछ मैगजीन्स के लिए लिखता था। और उसके बाद जब मुझे नौकरी का ऑफर आया, तो उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि वो मार्च का ही महीना था, हिंदुस्तान में आम चुनाव का ऐलान हो गया था, और मुझे ये ऑफर था कि भाई मेरे जो बॉस थे, जो जहाँ मैं जॉब करता था, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं मध्य प्रदेश में जाऊं, भोपाल में जाऊं, और वहां पर चुनाव की रिपोर्टिंग करूं। और उस वक्त मध्य प्रदेश में बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शन चल रहे थे। नवाब पटौदी साहब वहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से थे, और उनके सामने जो है बीजेपी के एक कद्दावर ऐसे नेता, जो लगातार वहां से 5-6 बार चुनाव जीत चुके थे, बीजेपी के वो सांसद थे, और कांग्रेस ने उनको अपदस्थ करने के लिए, उनको हराने के लिए नवाब पटौदी को उतारा था। और शर्मिला टैगोर जो है उस वक्त घर घर जाकर भोपाल में वोट मांग रही थी। तो मेरा बड़ा एक मुझे लगा कि ये ऐसा अवसर है कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे पास विकल्प था कि मैं एमए का एग्जाम दूं, या मैं चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए जाऊं।
तो मैंने उस वक्त चुनाव की रिपोर्टिंग का ऑप्शन मैंने तलाशा, और मेरी एमए भी 1 साल ही हुई, उसके बाद जो है एमए कंप्लीट नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं जब मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, और ये बात है कि जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, वो दरअसल पढ़ने से ज्यादा सीखने की चीज है। वो आपको सीख कैसे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैं हमेशा हर मीडिया इंस्टीट्यूट में कहता हूं कि आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन साथ साथ सिखाने पर जोर दीजिए, यानी किस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखा सकते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैंने जितनी बाद में पत्रकारिता की किताबें पढ़ी मैंने, क्योंकि मुझे आना था, तो मैंने जो पत्रकारिता की किताबें पढ़ी, उनको पढ़कर मुझे लगा कि उनमें से शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जो मेरे आज भी किसी काम की। और मैं सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ, मुझे आज भी लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन करते हुए जो किताबें पढ़ी, क्या वो मेरी जिंदगी में कुछ हिस्सा है, मेरी जिंदगी में उन्होंने मुझे किसी काम आ रही है, ये सवाल मन में हमेशा उठता है। लेकिन अब ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ बनी है, उसको ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बदलेंगी। लेकिन मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल जो जर्नलिज्म है, मीडिया में अगर आपको आना है, तो आपको पढ़ने से ज्यादा सीखना है। ये ठीक है कि आज आपको, क्योंकि जब मैं आया था इस फील्ड में, वो दौर ऐसा था, वो दौर ऐसा नहीं था कि जिसमें हर साल लाखों लोग पत्रकार बनना चाहते थे। बहुत गिनती के लोग थे जो उस वक्त पत्रकारिता करने के लिए आते थे, क्योंकि पत्रकारिता के पेशे में कोई इतना बहुत ग्लैमर नहीं था। जैसे मैंने कहा, टेलीविजन 24 घंटे का तो था ही नहीं, तो ग्लैमर नहीं होता था, इतना पैसा भी नहीं होता था उस समय। जो है अखबारों में जो एक सैलरी थी, बहुत बड़ी सैलरी नहीं होती थी। जिस वक्त मैं मीडिया में आया, तो उस वक्त मुझे लगता था कि एक पत्रकार के रूप में अगर मैं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, तो मैं शायद अपना एक जो है छोटे से घर में अपना मेंटेन कर पाऊंगा, और एक स्कूटर ले लूंगा और जिंदगी निकल जाएगी। तो ये उस वक्त सपने होते थे एक पत्रकार के तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज मीडिया में ग्लैमर आ चुका है, आज मीडिया में पैसा आ चुका है, और इसीलिए जो है आज लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं। अब जब लाखों स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एंट्री लेवल पर आपके सामने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंट्री लेवल पर आपके सामने कई सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं, उनमें से आप एक ऐसे हैं जो दरअसल मीडिया में कुछ स्टैंड कर सकते हैं, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वो आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो है आपको जाहिर सी बात है, आपको एक डिग्री भी चाहिए, क्योंकि बिना डिग्री के आज के दौर में कोई अगर आना चाहे, तो आप हमारे यहाँ डीडी न्यूज में ही अब जो है रिकॉर्ड जब मेंटेन हो रहे थे, तो मेरे से भी पूछा गया आपके पास कौन सी डिग्री है, तो मैंने कहा मेरे पास कोई डिग्री जर्नलिज्म की नहीं है। तो अब क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी हो गया, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण, जैसे मैंने कहा, लाखों लोग आ रहे हैं, तो हर कोई बीए एमए करके अगर मीडिया में आना चाहेगा, तो फिर सवाल है कि पर ऐसे तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हो जाएंगे। तो इसलिए एक सब जगह पर एक ये तय हुआ कि भाई, जो लोग मीडिया एजुकेशन में पढ़कर आ रहे हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और उसका एक बड़ा कारण और मैं आपको बता दूं, ये परिवर्तन का, पहले वो दौर था जब आपको लोगों के पास इतना समय था, आपको सिखा सकते थे। मुझे आलोक तोमर जी से जो है जर्नलिज्म की बहुत बारीकियां सीखने को मिली। आलोक तोमर जी उस वक्त जनसत्ता के ब्यूरो चीफ होते थे, और बहुत धुरंधर, अब तो वो जो है इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आलोक तोमर जी उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम होता था, और उन्होंने मुझे पर्सनली जो है जिस तरह से गाइड किया, एक रिपोर्ट उन्होंने मुझे करने के लिए बोला, और एक इलाके में, और वो एक कहानी है, अगर जरूरत होगा तो मैं उसको रिपीट करूंगा, लेकिन बेसिक बात है कि उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट करने का मौका दिया, और उस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने, वो रिपोर्ट मुझे 3 बार जो है मुझे एक ही जगह पर चक्कर लगवाए, और उसके बाद उन्होंने जो मुझे जो कुछ सिखाया, वो मुझे जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक लेसन था। लेकिन एक तो वो प्रैक्टिकल चीज थी, और दूसरी बात ये कि उस वक्त ऐसे लोग थे जो आपको सिखा सकते थे। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप जाएंगे किसी चैनल में इंटर्नशिप करने भी जाएंगे, तो भी किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो सिखा पाए। ये लोगों को लगता है कि इंटर्नशिप हम करते हैं, इंटर्नशिप एक कंपलसरी एक आपकी आपकी जब आप पास आउट होकर निकलेंगे, तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप इंटर्नशिप करें। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंटर्नशिप करने में भी आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको इंटर्नशिप के समय सिखाएगा। आपको खुद से ही बढ़कर, आगे बढ़ करके चीजें करनी पड़ेंगी, खुद से ही आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, खुद से ही सीखना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने देखा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंटर्न ऐसे आए जो आज हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं। वो ऐसे इंटर्न थे
जो दरअसल रात दिन बैठकर खुद बैठ करके देखा करते थे। कभी वीडियो एडिटर के साथ बैठ जाते थे, कभी जो है प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाते थे, और सिर्फ देखकर उन्होंने सीखा। तो अब किसी के पास इतना समय भी नहीं है, इसलिए कुछ चीजें अब कंपलसरी हो गई हैं, जिसमें आपकी एक डिग्री या डिप्लोमा भी है, और उसमें आपके इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि इंस्टीट्यूशन आपको दरअसल किस तरह से आपको वो नर्चर कर रहा है, आपको किस तरह से सिखा रहा है, क्या प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। और उसी प्रैक्टिकल चीजें जब आप सिखाने में होता है, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इंडस्ट्री के लोगों को आप इंटरेक्शन करवाने का, क्योंकि इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं, इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं, वो आप सीख सके, जान सकें। तो उसी कड़ी के रूप में आप लोगों के यहाँ ये जो है अमरीश जी ने ये आयोजित किया है, तो ये एक अच्छी पहल है। और साथ साथ मैंने कहा कि प्रैक्टिकल चीजों पर आप बहुत जो है ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल चीजों पर बहुत आप काम कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मीडिया की सिनेरियो की बात में आता हूँ, देखिए आज मीडिया का जो सिनेरियो है, आज अगर हम मीडिया की बात करेंगे तो आज हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, और बहुत खराब स्थिति भी है, बहुत बेहतर स्थिति भी है। जब मैं खराब और बेहतर कहता हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज बहुत चुनौतियां भी हैं मीडिया में। जब आप मीडिया में आना चाहते हैं तो वहां पे ऐसी चुनौतियां हैं जो पहले नहीं होती थी। आज उस तरह की चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ साथ आज अवसर भी बहुत हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो एक चैनल में एंकर थे, और कुछ समय पहले उन्होंने एक अपनी जॉब वहां से छोड़ी, जिस चैनल से छोड़ी। बीच में उनके पास कुछ समय ऐसा था जब उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था, अब तो उन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया है। तो बीच में एक समय ऐसा था जब वो सोच रहे थे कि वो क्या करें, जाएं ना जाएं, क्योंकि उनको जो अवसर मिले थे वो जाहिर सी बात है शायद उससे संतुष्ट नहीं होंगे, या जो भी कारण होगा। तो जब उन्होंने वहां से छोड़ा, और उसके बाद जब बीच का कूलिंग पीरियड था, जब उनको था कि मैं क्या करूं, किस चैनल में जाऊं, क्या पोजीशन पे जाऊं, जब ये सब चीजें चल रही थी, उस बीच उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और देखते ही देखते उस यूट्यूब चैनल के लाखों फॉलोअर्स हो गए। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा क्या बात है, क्या आप अब क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्वाइन नहीं करने वाले हैं क्या? तो उन्होंने बोला, दादा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले, मैं जहाँ जिस चैनल में था और जिस पोजीशन पे था, मैं वहां पर जो अर्न करता था, जो सैलरी मुझे मिलती थी, मैं उससे 1.5 गुना अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर रहा हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जाऊं, या मैं यूट्यूब चैनल जो चला रहा हूँ मैं वहीं पर रह करके करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, अपने हिसाब से कंटेंट तय करता हूँ, अपने हिसाब से चीजें करता हूँ। जब सहूलियत होती है तो बैठकर रोज वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं बाकी चीजें में लग जाता हूँ। तो ये उन्होंने कहा। तो मैं ये सोच रहा था कि आप सोचिए कि जो आपकी सैलरी एक आपको एक देश के प्रतिष्ठित चैनल में मिल रही थी, उतनी सैलरी, उससे ज्यादा आप जो है यूट्यूब चैनल चलाकर आप कमा लेते हैं। तो फिर ये अवसर है, लेकिन चुनौतियां क्या हैं, मैं इन अवसरों पर भी आऊंगा, क्योंकि ये अवसर हर एक के लिए नहीं। ये मत सोचिएगा कि आप कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चलाएगा और उसको जो है उतनी सैलरी मिलने, उसको उतना पैसा मिलने लगेगा, इतना आसान भी नहीं है। मैं उस पर आऊंगा कि उन अवसर में जो है, उन अवसरों को आपको कैसे भुनाना है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन चुनौतियों की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए, आज हम सब जानते हैं पिछले कुछ समय में कोरोना का जो दौर था, अभी भी जो चल रहा है, अभी भी हम उससे पूरी तरह से उभरे नहीं है। अभी कल मेरी अमेरिका में अपने एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यूएस में जो है कोरोना जो है वो वापस फिर से आया है, और कई जगह पर अब जो है मास्क, उन्होंने बीच में मास्क अमेरिका ने हटवा दिया था, कहा था किसी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वैक्सीन लग गई, आप घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यूएस में भी, अमेरिका में भी कई सिटीज ऐसी हैं, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कंपलसरी कर दिया गया है कि मास्क लगाना ही लगाना है। खास करके मॉल्स में और जो सार्वजनिक जगह है, वहां बिना मास्क लगाए आप जा नहीं सकते, ये अमेरिका में। तो ये दौर अभी चल रहा है, ये चुनौतियों का दौर अभी चल रहा है। तो ये जो कोरोना का जो दौर था, इसने हमारे सामने एक नई तरह की, खास करके मीडिया के सामने एक नई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी। हम जानते हैं कई पत्रकार ऐसे हैं और हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनको कोरोना के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मेरे मित्र रोहित सरदाना का मुझे बार बार याद आता है, किस तरह से वो ठीक ठाक थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक से उनके साथ हुआ, और उनको वो एक युवा पत्रकार, एक बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी पत्रकार जो है, एक बहुत अच्छा मित्र जो है, हमने खो दिया। तो इस तरह से हुआ कि कई पत्रकार जो हैं, कई पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया घर बैठकर काम कर रही थी, जिस वक्त दुनिया आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उस वक्त भी पत्रकारों के सामने ये विकल्प नहीं था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें। कुछ जगह पर ऐसा हुआ, कुछ एंकर्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने घर से ही एंकरिंग करनी शुरू करी, घर से ही उन्होंने कैमरा लगा के करना शुरू किया। आज टेक्निक ने हमको ये ताकत तो दे दी है कि हम कहीं से भी बैठ करके, आज मैं आपके, अगर अगर ये कोरोना का दौर नहीं होता तो शायद आपका जो शानदार जो इंस्टीट्यूट है मैं वहां होता, और शायद हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे होते। आपका खूबसूरत ऑडिटोरियम मुझे किसी ने बताया, मैं कभी आया तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके यहाँ बहुत अच्छे कुछ ऑडियंस हैं, तो शायद वहां पर हम लोग रूबरू होकर बात कर रहे होते, वन टू वन बात कर रहे होते। लेकिन आज कोरोना ने हमको ये तकनीक की ताकत समझा दी है कि हम दूर बैठकर भी हम लगातार बात कर सकते हैं, लगातार हम जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी ताकत है। तो बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो लोग जो है ऑनलाइन चीजें कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो जो पत्रकार थे, ज्यादातर जो एक्टिव पत्रकार थे और जो प्रमुख पदों पर थे, उनको लगातार घर से बाहर निकलना पड़ा, और सिर्फ घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, रिपोर्टिंग के दौरान आपको बाकायदा ऐसी ऐसी जगह पर, आपको बहुत सारी जगह पर जाना पड़ा, जबकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पर आपको फील्ड में भी उतरना पड़ रहा था, लोगों के बीच में भी जाना पड़ रहा था। जिस वक्त कोरोना की पहली लहर थी, उस वक्त जो है उस वक्त ऐसा हो गया था कि भाई उस वक्त क्या करेंगे हम। तो उस वक्त ये चीज हुई थी कि भाई आपको याद है कि उस वक्त कई सारी चुनौतियां और आई थी। लद्दाख में चीन का जो एग्रेशन देखने को मिला था, तो उस दौरान मुझे और उसी समय जो है कश्मीर में भी कुछ डेवलपमेंट हो रही थी। तो जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, कोरोना की फर्स्ट वेव थी, उसी दौरान पे कुछ महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स के लिए मुझे कश्मीर में श्रीनगर जाना पड़ा। और कश्मीर में मुझे जाकर वहां पर 15 दिन मुझे वहां पर रहना पड़ा, 15 दिन मुझे वहां पर काम करना पड़ा। उसके बाद मुझे लद्दाख भी जाना पड़ा, लद्दाख में जो रिमोट एरियाज थे वहां तक मुझे रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त वहां इतने बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे कि एक पत्रकार घर में नहीं बैठ सकता था, ना ये कह सकता था कि वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। जब मैं कश्मीर में गया तो मैं बड़ा हैरान था वहां पर तो क्योंकि वहां पर बड़ी दिलचस्प चीजें हुई, तो मुझे एकदम से कई बार धक्का भी लगता था, मुझे लगता था कि मैं क्या अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ क्या। इस बार कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में जिससे पहले जब जब भी रिपोर्टिंग करने गया हूँ, सबसे बड़ा जो जान जोखिम में जो लगता था, वो लगता था कि जब आप ऐसे इलाकों से जहां पर पत्थरबाजी होना आम घटना बात होती थी, जहां पर गोलियां चल जाना आम बात होती थी, जहां टेररिस्ट कहीं पर छुपे होते थे, तो डर उन जगह लगता था। लेकिन इस बार मुझे अपनी गाड़ी में ही डर लगता था, क्योंकि क्या हुआ कि वहां पर हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, और कई बार क्या होता था कि हमें अपने आगे के इलाकों के लिए जहां हम जा रहे हैं वहां के किसी जानकार व्यक्ति को हमको अपने साथ लेना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था रिपोर्टिंग में, एक ही गाड़ी के अंदर हम 5-5 6-6 लोगों को बैठाना पड़ता था, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो हम किस तरह से सट सट के बैठते थे, और जब हम सट के बैठते थे तो कलेजा जो है वो मुंह को आ जाता था, लगता था कि कितना जोखिम भरा काम है, पता नहीं हम कोरोना के टाइम में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हमको फॉलो करनी है, वहाँ हमारी मजबूरी ऐसी है कि हमको इस तरह से ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये चुनौतियां भी जो हैं उस समय बहुत सारी चुनौतियां इस तरह की होती थी। तो ये चुनौती थी कोरोना के टाइम में, और उसके अलावा एक ये बात हुई कि कई सारे पत्रकारों की जॉब भी गई, नौकरियां भी गई। अखबारों में एक खबर आई कि अखबारों में जो है, दरअसल अखबारों से भी कोरोना फैल सकता है, तो लोगों ने अपने घरों में अखबार मंगवाने बंद कर दिए। अखबारों की सर्कुलेशन जो एकदम से नीचे आ गई, और जैसे ही नीचे आई तो फिर उसका सीधा सीधा जो असर किस पर पड़ता है, वो पत्रकारों पर पड़ता है। कई पत्रकारों की नौकरियां गई, कई पत्रकारों की जो सैलरी जो है उनकी सैलरी कट हुई, उनसे कहा गया, जो लोग 1 लाख रुपए में काम कर रहे थे उनसे कहा गया कि अभी आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको 50,000 ही दिया जा सकता है। तो मजबूरी थी, सबने वो उस समय वो उसको भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मार्केट में नए एवेन्यूज नहीं थे, नए अवसर नहीं थे। तो इसलिए जिसके साथ जो हुआ उसको उसको भुगतना पड़ा। तो ये चुनौतियां थी हमारे सामने, इस वक्त उन चुनौतियों के बीच से निकले। लेकिन इन चुनौतियों ने हमारे सामने नए अवसर भी दे दिए। नए अवसर, जैसे मैंने कहा, बहुत से पत्रकारों ने नए नए जो है एवेन्यूज शुरू किए, उसी दौर में शुरू किए, और वो एवेन्यूज जो है आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा, आज देखिए
आपके सामने काम करने के लिए। जब हम लोग आए थे 30 साल पहले, तो हमारे पास सिर्फ एक अखबार होता था जहां आपको जॉब मिलती थी, और वो भी अखबार भी बड़े सीमित संख्या में थे। आज अखबार बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अखबारों में आपको उन अखबारों में आपको जॉब मिलेगी। तो अखबार बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन फिर भी जो है। और एक चीज मैं और बताऊं, ये इस कोरोना के दौर में एक ये भी बात हुई, और पिछले कुछ समय से अगर आप में से कोई स्टडी करना चाहे तो स्टडी कर सकता है, कि बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई है कि आज की तारीख में अखबार जो है वो अपने विज्ञापनों से पैसा नहीं कमा रहे बहुत ज्यादा। मतलब जो प्रिंट अखबार है, जो टेलीविजन चैनल है, टेलीविजन चैनल अपने एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा इतना नहीं कमा रहे, लेकिन जो ज्यादा अर्निंग उनकी हो रही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है। आप ये सोचिए कि आज की तारीख में कई न्यूज़पेपर, कई चैनल ऐसे हैं जो अगर अपना अखबार बंद कर दें या चैनल बंद कर दें, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहें, तो भी उनकी अर्निंग उतनी ही बनी रहेगी। लेकिन चैनल इसलिए है क्योंकि चैनल जो है, अभी भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो डिजिटली नहीं जुड़ा है, जो डिजिटल नहीं पसंद करता। घर घर में अभी भी टीवी, टेलीविजन देखा जाता है। अखबार पढ़ने वाले आज भी हमारे सामने हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो जो अवसर के रूप में जब मैं बात करता हूँ, तो एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आज बहुत सारे एवेन्यूज हैं। हमारे पास अखबार हैं, हमारे पास टेलीविजन चैनल्स हैं, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक दौर था जब टेलीविजन न्यूज आई थी तो ये लोग कहते थे कि अखबार बंद हो जाएंगे। अब तो और हुआ भी। यूएस में ऐसा हुआ भी। वहां पर बहुत सारे अखबार, बहुत सारी मैगजीन बंद हो गई। हमारे यहाँ भी बहुत कई सारी मैगजीन्स तो बंद हुई, लेकिन न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ बंद नहीं हुए, बल्कि आज पहले से ज्यादा न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में हैं। तो आज भी हमारे यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उनकी चॉइस बदल गई। उनका उनका उनको कंटेंट आपको क्या देना है, किस रूप में देना है, वो बदल गया। तो चुनौती ये है कि आप उस नई पीढ़ी के साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अखबार हैं, तो टेलीविजन आए, अखबार नहीं गए, अखबार अभी भी हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया तो लोग टीवी देखना बंद कर देंगे, और हो सकता है किसी दिन ऐसा है कि टेलीविजन चैनल बंद हो जाए। लेकिन मेरा बड़ा मानना है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि हिंदुस्तान में टेलीविजन आने के, डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद भी, मोबाइल टीवी आने के बाद भी हिंदुस्तान में टीवी न्यूज मीडिया बना रहेगा। उसकी उसकी अपनी जो है एक जगह रहेगी, वो बंद नहीं होगा। तो अवसर के तौर पे आपके सामने क्या आया? जो अवसर आपके पास कभी सीमित थे, एक ऑप्शन था, आज आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप अखबार में जा सकते हैं, आप टेलीविजन न्यूज में जा सकते हैं, आप इसके अलावा जो है टेलीविजन न्यूज को छोड़ करके आप जो है डिजिटल मीडिया में जा सकते हैं। डिजिटल मीडिया में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप किसी पोर्टल से न्यूज पोर्टल से जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल अपना चला सकते हैं। आप मोजो जर्नलिज्म जो है आज बहुत तेजी से उभर रही है, आप मोजो जर्नलिज्म करके आप अपना एक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे नई चीजें अभी बहुत जल्दी हम देखेंगे। कुछ चैनल हमारे यहाँ लॉन्च होंगे अगले 1 से 2 साल में, और वो चैनल मोबाइल चैनल होंगे। उनको वो टीवी पे नहीं होंगे, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स को चलाने में एक अलग तरह का खर्चा आता है, एक अलग तरह का एक बड़ा बजट, बिग बजट की आपको जरूरत होती है। और चैनल चलाने से ज्यादा आज की तारीख में चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन पर पैसा लगता है, कि आप चैनल शुरू तो कर दें। आप अगर एक चैनल, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपको आज एक चैनल शुरू करना है, अगर आप वो चैनल 50 करोड़ रुपए में शुरू कर सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको 150 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर, मेरे टेलीविजन में मेरे पास अगर जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है उसमें आपका चैनल आएगा ही नहीं, तो फिर उसको देखेगा कौन? तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन इसके अलावा ये वहां पर दुविधा है। लेकिन अगर जो मोबाइल पर जो चैनल अगले कुछ समय में लॉन्च होने वाले हैं, उन चैनल्स पे ऐसी चीज नहीं होगी, वो एक कम बजट में वो मोबाइल चैनल लॉन्च किए जा सकेंगे। तो अगले 1 से 2 साल में बहुत सारे नए हम देखेंगे कि मोबाइल चैनल जो हैं हिंदुस्तान में लॉन्च होंगे। वो एक नया एवेन्यू होगा जो खुलेगा, और वो बहुत कम बजट में शुरू किया जा सकता है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैंने एक यूट्यूब चैनल अपने मित्र का जो उदाहरण दिया उस वक्त में भी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट जो है वो किंग है। आपके पास कंटेंट है क्या? आप ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं कि लोग आपके यूट्यूब चैनल पर आए। एक कोई व्यक्ति एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन सडनली उस व्यक्ति के भारत में लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके यूट्यूब चैनल पे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक कंटेंट होता है। तो आज जो किंग है वो कंटेंट है। अगर आपके पास मीडिया में वो कंटेंट है, क्योंकि आज आप एक बात बड़े मैं आपको बता दूं, बहुत इस बात को याद रखिए, आज आप टेलीविजन चैनल जो है गौर से देखना शुरू कीजिए, ध्यान से देखना शुरू कीजिए। जब आप एक चैनल लगातार देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस चैनल में आज 30 से 40% जो खबरें होती हैं वो सोशल मीडिया से आई होती हैं, सोशल मीडिया की होती हैं, सोशल मीडिया से उठाई हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आज चैनल्स को कंटेंट दे रहा है। तो इसलिए दे रहा है चैनल्स को, अपने रिपोर्टर से ज्यादा आज जो कंटेंट मिल रहा है वो सोशल मीडिया से मिल रहा है। अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर जो थोड़ी बहुत जो वीडियोज आ रही हैं, और वो आपको वीडियो हर चैनल पर, हर जगह पर आपको दिखाई देगी, हर आपको चैनल पर वो वीडियोज दिखाई देगी। वो वीडियोज जो है वहां पर या तो कुछ लोकल जर्नलिस्ट हैं जो वहां से भेज रहे हैं, कुछ महिलाएं जो है वहां पर जो तालिबान का विरोध कर रही हैं, वो महिलाएं जो हैं कुछ वीडियोज बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं। और इसके अलावा कुछ और लोग जो हैं जो वहां पर किसी भी पक्ष में हो, चाहे तालिबान के पक्ष में हो चाहे तालिबान के विरोध में हो, वो जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी तरह की कुछ वीडियोज जो है निकाल रहे हैं, और वो वीडियोज जो है दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही है। तो ये जो सोशल मीडिया है आज बहुत बड़ा कंटेंट जो है मीडिया को दे रहा है। तो इसलिए अब आप सोचिए कि अगर आपके पास, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास फर्ज कीजिए किसी अखबार में, किसी टेलीविजन चैनल में नौकरी नहीं है, तब भी अगर आप अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको आज नहीं तो कल किसी चैनल से कहीं से नौकरी का भी ऑफर आ सकता है। क्योंकि आप वो समझ रहे हैं कि आपके पास कंटेंट है, आप जानते हैं कि दरअसल लोगों को समझ क्या है, लोग किस तरह के कंटेंट की लोगों को समझ है, और लोग किस तरह के कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें और बात मैं जोड़ दूं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तान में हर तरह का कंटेंट जो है आज की तारीख में, अगर वो अच्छा कंटेंट है, हर तरह का कंटेंट जो है उसको देखने वाले, पसंद करने वाले भी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान आज एक बहुत बड़ा अपने आप में बाजार है। 130 करोड़ 135 करोड़ की हमारी आबादी है, जिनमें आज जो है 70 से 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। और इसमें से कम 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज से जुड़ी या फिर किसी इंफॉर्मेटिव चीजों की तलाश में लगातार रहते हैं। मैंने खुद भी बीच में अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करने की कोशिश की थी। क्यों मैंने करी? मैं एक दिन फ्लाइट में जा रहा था, तो मैंने देखा कि फ्लाइट में हर व्यक्ति, मतलब अगर वहां पर हर व्यक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहां पर उस फ्लाइट के अंदर मैंने देखा कि करीब करीब 40 से 50 लोग ऐसे थे जो फ्लाइट जब टेक ऑफ कर जाती है तो वो अपने मोबाइल पर किसी न किसी न्यूज से जुड़े किसी पत्रकार का कंटेंट जो है उसके यूट्यूब पे जो वो किसी चीज का जब एनालिसिस कर रहे थे, वो जो है उस एनालिसिस को लेकर के वो उस एनालिसिस को सुन रहे थे अपने मोबाइल में। तो मुझे उस दिन लगा, मैंने कहा ये कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि कई सारे चैनल आज ये कर चुके हैं, कई सारे चैनल से शुरू किया है कि वो अपने एंकर्स को बाकायदा, उनके एंकर्स के शो होते हैं, शो के अलावा वो कहते हैं कि आप हमारे डिजिटल चैनल के लिए भी एक जो है एक टॉक करिए। तो वो अपनी आधे घंटे की 20 मिनट की एक टॉक जो है डिजिटल चैनल के लिए वो लोग अलग से करते हैं। तो उस दिन जब मैंने फ्लाइट में महसूस किया, उसके बाद मैंने, क्योंकि उस वक्त कोरोना का चल रहा था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और लेकिन अब वो मजबूरी है मेरी, मैं उसको उसको कंटेंट मैं उस पे, क्योंकि आज समय नहीं मिलता तो मैं उसको नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं उसके लिए। लेकिन वहां आज भी मुझे लोग, जो लोग मुझे डीडी पर देखते भी हैं, आज भी वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ट्विटर पे लिखते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल जो है बंद मत कीजिए, आप उस पर कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहिए। लेकिन मैं समय के अभाव के कारण नहीं डाल पाता। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल जो कंटेंट है, लोगों को उस कंटेंट की बहुत भूख है। आप सोचिए हवाई जहाज में, एक फ्लाइट में जो है अगर 50 लोग हैं, तो आप सोचिए कि वो लेवल भी है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, हिंदुस्तान में लगातार ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को भी कंटेंट चाहिए। और अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी ऐसी बस्ती में जो गरीब लोगों की बस्ती है वहां जाएंगे, वहां पर भी आप देखेंगे, वहां पर भी आपको कुछ लड़के दिख जाएंगे जो इस तरह के कंटेंट को लेकर, मोबाइल को लेकर लगातार सुन रहे होंगे। और मिडिल क्लास तो खैर बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इस तरह के कंटेंट की तलाश में रहता है। तो आपके पास इतना
इतना बड़ा एक मार्केट है जिसको कंटेंट की तलाश है। आज अगर तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है तो हम लगातार न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी भी अगर आप एक अच्छा वीडियो बनाकर, जिसमें कुछ आप सोशल मीडिया पर रिसर्च करके, कुछ वहां से वीडियोस उठा करके, मान लीजिए बीच में जो है अभी अभी एक हफ्ते पहले हिंदुस्तान में ये डिबेट चल रही थी कि तालिबान 2.0 जो है ये नया तालिबान है, बदला हुआ तालिबान है। तो मैं ये कह रहा था कि जब तालिबान हिंदुस्तान में जब तालिबान अफगानिस्तान में एंट्री किया, उस वक्त जो है तालिबान को लेकर के लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए तालिबान कब आया था, तालिबान 20 साल पहले अफगानिस्तान में रूल करता था। और हम जैसे लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो उस पीढ़ी के हैं। हमको याद है तालिबान का रूल जो है वो किस तरह का था, तालिबान अफगानिस्तान में क्या करता था, कैसे उसने अमेरिका में 9/11 की वारदात में जो है तालिबानियों का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं छुपा हुआ था। और कैसे कंधार में भारत का एक विमान जो है हाईजैक करके ले जाया गया था, और उस वक्त वहां पर तालिबानियों ने किस तरह से उस हाईजैक को जो है सपोर्ट किया था, कैसे वहां पर उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड की थी, और किस तरह से भारत को कुछ खतरनाक आतंकी छोड़ने पड़े थे। तो ये सारी चीजें उन लोगों के जहन में थे जो 20 साल पहले। लेकिन आज बहुत सारे लोग, शायद जो लोग 20 साल में सिर्फ तालिबान को बातचीत की टेबल पर देखते रहे हैं, उनको शायद तालिबान नहीं पता होगा कि तालिबान रियल फेस क्या है। अगर उस दौर में जैसी तालिबान एंटर किया था, अगर आप एक डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो और वहां पर आप एक अच्छी वीडियो या अच्छी एक इंफॉर्मेटिव चीज तैयार कर पाते कि तालिबान दरअसल क्या है और किस तरह का इसके नियम कायदे, और कैसे ये महिलाओं को सैंडल नहीं पहनने देता, कैसे सैंडल पहनने पर महिलाओं को जो है वहां पर या तो कोड़े मारे जाते हैं, गोली, कैसे वो कहता है कि आप मुंह ढक करने के लिए, कैसे तालिबान जो है बाकी। तो इस तरह का अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते तो उसका मेरा मानना यह है कि उस कंटेंट को पसंद करने वाले, देखने वाले बहुत लोग होते। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज अवसर बहुत हैं। आप ठीक है, आप यहाँ से निकलेंगे, जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप किसी अखबार में काम कर सकें, किसी टेलीविजन चैनल में जा सकें। बिल्कुल आपके लिए लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें कहीं आपको थोड़ी रुकावट आती है, थोड़ा समय लगता है, तो आपको कतई अपना दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि अभी, क्योंकि किसी भी चैनल में जॉब ओपनिंग्स जो है वो शायद कम होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होती नहीं है, होती भी है, और अच्छे लोगों को छोड़ते भी नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिए। होता सिर्फ इतना है कि अगर किसी चैनल के दरवाजे पर 1,000 एप्लीकेशन है तो उसमें से 2 लोगों को जरूर मौका मिलेगा, 3 लोगों को, 5 लोगों को जरूर मौका मिलेगा। लेकिन वो 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को दिखा सकें कि वो आउटस्टैंडिंग हैं। आप भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कभी मीडियोकर आप पत्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको एक जर्नलिस्ट बनना है तो आप हमेशा मन में ये विचार रख के चलें कि आपको टॉप क्लास जर्नलिस्ट बनना है। अगर आपको रिपोर्टर बनना है तो आपको एक टॉप क्लास रिपोर्टर बनना है। आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट सोर्सेज होने चाहिए, आपके पास अच्छी अपनी बात को कहने के लिए समझ होनी चाहिए, आपके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए। अगर आपको एक एंकर बनना है तो आपके पास खबरों को एनालिसिस करने की, खबरों को समझने की, खबरों की एक अच्छी आपके पास एनालिसिस पावर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आज से डेवलप करना शुरू कीजिए। कुछ लोग डेवलप करना शुरू कर चुके होंगे, कुछ के पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेवलप कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आप आज से, अभी से काम करना शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के बीच आप नहीं कर सकते, आप पढ़ते हुए, अपना कोर्स करते हुए आप ये सब चीजें कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैंने अखबारों के लिए लिखना शुरू कर दिया था जब मैं कॉलेज में था, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत कंटेंट चाहिए, मीडिया को बहुत कंटेंट चाहिए, आपके जो मोबाइल है उसको बहुत कंटेंट चाहिए, जो वेबसाइट्स हैं उनको बहुत कंटेंट चाहिए, सबको कंटेंट चाहिए। आप क्या कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ये आपको तय करना, और कंटेंट जनरेट तब आप कर पाएंगे जब आपके पास एक खबर की समझ होगी, जब आपके पास रिसर्च करने की ताकत होगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिसर्च करना है, क्योंकि एक खबर जब आती है तो सिर्फ खबर के रूप में तो कोई भी, किसी भी चैनल पर आपको खबर मिल जाती है। कल्याण सिंह की मृत्यु हुई, ये खबर आपको हर चैनल पे मिल जाएगी, कल्याण सिंह के बारे में जीवनी मिल जाएगी। लेकिन कल्याण सिंह जी को लेकर क्या आप इस तरह की कंटेंट जनरेट कर सकते हैं? उनके बारे में रिसर्च करके, कुछ लोगों से जानकारी लेकर। अगर आप कल्याण सिंह जी के गांव के आसपास रहने वाले हैं और अगर आप उनके गांव के आसपास, अगर उनके गांव तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आप एक ऐसी चीज जनरेट कर सकते हैं जो कल्याण सिंह के जीवन का एक वो पहलू बता दे जो कोई अभी नहीं जानता, कोई जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर आप वहां तक पहुंचकर एक कंटेंट ऐसा जनरेट कर दे और उससे आज
आज आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल दें, कहीं डाल दे, तो मेरा आपसे दावा है कि आज ही आज में आपके कम से कम 50, 60, 70,000, 80,000, 1 लाख उसको जो है देखने वाले हो जाएंगे। और अगले कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंटेंट को देखने वाले मिलियंस लोग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंटेंट की लोग तलाश में है और कंटेंट को जनरेट करना, लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप किसी भी जो मैंने कहा था कि आप जब यहाँ से कोर्स अपना कंप्लीट करके निकलेंगे, तब तक आपको कई चीजों में परम अपने आप को पूरी तरह से ट्रेंड कर लेना है। और मैं हमेशा मानता हूँ किसी भी एंकर के लिए, किसी भी रिपोर्टर के लिए, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी नॉलेज होती है। और जब मैं नॉलेज की बात करता हूं तो मैं नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपको जर्नल नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वियतनाम जो है उसकी आबादी कितनी है। ये नहीं कि आपको जो आईएएस के एग्जाम देते हुए जो जो आपके साथ जो चीजें होती है आपको वो नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज का आपको आपको नॉलेज का मतलब है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो खबरें हो रही हैं, उन खबरों को लेकर आपके पास कितनी समझ है या कितनी जानकारी है। अगर आज एक तालिबान को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है तो तालिबान को लेकर आप कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं, कितनी समझ है। तो उन खबरों को जानना, उनकी रिसर्च करना, ये आपको खुद करना है। ये आपको जो है इंस्टीट्यूट में या आपके कॉलेज में आपको बताया जा सकता है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं करा सकता। ये आपका पार्ट है कि आप अपने आप को इसमें किस तरह से ट्रेंड करते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने कहा कि एक नॉलेज, मैं मानता हूं कि किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं ये भी कहता हूं कई जगह कि नॉलेज, जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट के स्पेलिंग जो है JURNALIST होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि एक अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है जो जर्नलिस्ट JURNALIST अच्छा वही होता है जो जर्नलिस्ट होता है GENRALIST, जर्नलिस्ट। यानी कि जनरल जो चीजें हैं, जनरल जो आपके आसपास चीजें घट रही हैं, जो चीजें हैं उनसे आप अवेयर हो कि नहीं हो, उनको आप जानते हो, समझते हो, उन चीजों के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है कि नहीं है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन, ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, बहुत रिसर्च भी करिए। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषा आपके पास, क्योंकि एक अगर आप अखबार में जाना चाहते हैं तो आपकी भाषा जो है, आपकी भाषा उस हिसाब से आपको लिखने की भी और बोलने में भी आपकी भाषा जो है वो बेहतर, अच्छी होनी चाहिए। आपको वर्ड से वोकैबुलरी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप शब्दों से खेल सकें, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो शब्दों से खेलता है। टेलीविजन चैनल पर आप देखते हैं ना कि एक ही विजुअल चल रहा होता है और उसके ऊपर कैसे एंकर जो है आधे आधे घंटे उसका शो निकाल देता है, आपको पता ही नहीं चलता, वो घुमा फिरा के एक ही बात कई बार बोल देता है। वो शब्दों से खेलना होता है। तो आप क्या शब्दों से खेल सकते हैं? आपकी वोकैबुलरी इतनी है, पावरफुल वोकैबुलरी है, तो आपको भाषा अपनी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। और भाषा के साथ साथ मैं एक चीज और भी कहता हूँ, उच्चारण पर भी, क्योंकि शब्दों का वोकैबुलरी जो है, शब्दों का उच्चारण भी आपको बहुत समझना पड़ेगा। क्योंकि ये ठीक है कि आज आपको बहुत सारे पत्रकार ऐसे मिल जाएंगे जिनके उच्चारण सही नहीं होते। गाजियाबाद को गाजियाबाद बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। वो जब 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 फिर और फिर में फर्क होता है। एक्चुअल शब्द जो है फिर होता है, फिर नहीं होता। फूल और फूल में फर्क होता है। जो फूल होता है वो फूल होता है, वो बेवकूफ होता है, लेकिन जो फूल होता है वो फूल होता है। वो एक दरअसल हम फूल की बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो ये उच्चारण जो है ये भी आपके लिए बहुत बड़ी जरूरी चीज है। बहुत आपको इसके लिए भी अपने आप को ट्रेंड करना है, अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जो सही उच्चारण नहीं करते। अखबार में आप जा रहे हैं तो आपको शायद उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप टेलीविजन में हैं तो आपको सही उच्चारण की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। जब मेरा ही नाम कोई लोग अशोक बोलते हैं ना, अशोक, तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार मेरे नाम को आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि दुनिया में कहीं पर भी आप किसी के शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम गलत लेंगे तो उसको कितना खराब लगेगा। मैं केरल गया था, मैं केरल में 15 दिन था, तो मुझे एक चीज समझ में आई। हम लोग कालीकट जानते हैं, अंग्रेजी में कालीकट बोलते हैं उस, और वो केरल का एक शहर है। उसको आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ उसको आप कोझिकोड, तो बहुत सारे लोग उसको कालीकट या कोझिकोड बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं केरल के लोग पत्रकारों से क्या डिजर्व करते हैं? केरल के लोग पत्रकारों से डिजर्व करते हैं कि वो कालीकट नहीं बोले, वो कोझिकोड नहीं बोले, वो कोड़ीकोड बोले, क्योंकि उसका सही उच्चारण कोड़ीकोड है। और जिस दिन मैं वहां से लाइव कर रहा था
केरल से कोड़िकोड से लाइव कर रहा था, और जब मैंने कोड़िकोड बोला तो वहां पर जो मेरा कैमरामैन, मलयाली कैमरामैन था, लोकल था, उसने ताली बजाई, आके मुझसे गले से लिपट गया। कह रहा सर मैं हिंदी का पहला पत्रकार देख रहा हूँ जो हमारे शहर का उच्चारण सही कर रहा है, और हमें बड़ा खराब लगता है जब हमारे शहर का नाम जो है लोग गलत लेते हैं टेलीविजन पे बैठ के। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, क्योंकि आप जब पत्रकार हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, आपकी आपकी साथ साथ जो है लोकप्रियता भी, क्योंकि लोकप्रियता से आप अपने नए प्रशंसक पैदा करते हैं, और आपको जब आप नए प्रशंसक पैदा करते हैं तो उनमें से तब आपकी विश्वसनीयता बनती है जब आप किसी का सही नाम का उच्चारण करते हैं, जब आप एक सही खबर देते हैं, क्योंकि आजकल फेक न्यूज का भी जमाना है, बहुत सारे लोग फेक न्यूज देते हैं, एक्सपोज होते हैं, पकड़े जाते हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी एक पत्रकार की एक सबसे बड़ी पूंजी होती है। वो क्रेडिबिलिटी आपको इसी तरह से कमानी है कि आप रिसर्च करें, सही जानकारी दें, सही खबरें दें, और साथ साथ उच्चारण को भी आप उतना ही महत्व दें। ये मेरा आपसे कहना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, शायद मैं जो बता पाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे मालूम नहीं, मेरे पास अभी घड़ी नहीं है, लेकिन समय शायद मुझे काफी होगा। और दूसरी बात ये भी है, मैं अभी उपलब्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी रखें, क्योंकि कई बार भाषण भी बड़े लंबे हो जाते हैं और लोगों को वो शायद बहुत अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है कुछ सवाल भी हों, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध हूँ। बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, खूब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि जो आपको बैठने का, आपको आपको सोचने का भी आपको कई बार वक्त नहीं मिलता, आपको आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं, जब मुझे अमरीश जी ने बताया तो मेरे दिमाग में था कि आज की जो है ये जो सेशन है वो शायद 10 बजे के बाद से होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कल की 10 बजे से, तो मुझे सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ भी हुई इसीलिए शायद 1-2 मिनट लेट भी हुआ, क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोग का ऐसा हो गया कि हम लोग चाह कर भी जो है जल्दी सो नहीं पाते, बहुत सारी चीजों को अपडेट रखना पड़ता है। अगर कोई चीज खबर लाइव जा रही है, कोई बड़ी खबर आ गई, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है। तो आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता। बीते दिनों 15 अगस्त के संबंध में जब हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मैं रात को 3 बजे आके मैंने खाना खाया, क्योंकि भूख भी लग रही थी और ऐसा भी नहीं। तो ये बहुत मेहनत करने वाली जगह है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यहाँ विकल्प है कई जगह पर, बिना मेहनत के भी आप रह लेते हैं, लेकिन वो लाइफ आपकी छोटी होगी। मैं यही कहता हूँ, मैं बहुत शायद प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, लेकिन आज मैं अगर यहाँ पर 30 साल से कहीं डटा हुआ हूँ, आज मैं अगर 30 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं ये मानता हूँ उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो इसको जाता है कि मैं कभी मेहनत से आज भी पीछे नहीं हटा। मैं नलिनी सिंह जी के साथ एक टाइम में काम करता था, और जो है नलिनी सिंह जो हैं, उनसे मुझे काफी टेलीविजन के बारे में सीखने का मौका मिला। तो जब नलिनी सिंह जी के साथ मैं काम करता था, तो वो मुझे कई बार ये कहती थी कि उन्होंने मेरी माँ को एक दिन कहा, एक दिन मेरे घर आई थी, उन्होंने मेरी माँ को एक दिन कहा कि अगर मेरे पास, मेरी माँ से उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप एक अशोक और दे दो तो मैं दुनिया फतेह कर लूंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं सारा काम छोड़ देती हूँ, ये रात दिन लगा रहेगा लेकिन मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी माँ से कहा मुझे एक अशोक और दे देती तो मैं इस वक्त जो है देश का सबसे बड़ा चैनल खड़ा कर देती। तो मेरी माँ ने कहा अब आप बहुत देर से कह रही हैं अब तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। मेहनत करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपके जो गुरुजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको अच्छे टिप्स दे सकते हैं, वो आपको सही राह दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो बता दें, आपको सुष्मिता मैम बता दें कि आपको ये करना है, लेकिन उसके बाद आप वो करें ही ना, और उसके बाद फिर आप कहें कि देखिए जी हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो जो आपको बताया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है, उस पर अल्टीमेटली आपको चलना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। बिना मरे जो है स्वर्ग नहीं मिलता है, इस बात को याद रखिए। तो ये बड़ा जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ, और जो सवाल आएंगे उन सवालों का जवाब मैं देने की भरसक कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you, sir. We do have a question. The first one we have is from a student, Nitin Gupta. He's asking, does joining a media organization mean you don't have a voice of your own? Many reporters and journalists have lost their jobs just for speaking about the truth on their personal social media accounts against the ruling party. And what's your take on current media opinions and narratives? Do you also believe that pardarshita or the transparency towards the truth is going away and more fabricated and biased news is given to the people? नितिन जी, दो तीन चीजें आपने जो सवाल पूछे उसके बारे में मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा वो ये, और अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर ये मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया पर हर दौर में दबाव होता है, हर दौर में दबाव होता है। आज के 30 साल पहले भी मीडिया पर दबाव था, आज भी मीडिया पर दबाव है। हर दौर में पत्रकारों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी हैं। आज के 30 साल पहले भी पत्रकारों को नौकरियां खोनी पड़ी थी, आज के दौर में भी पत्रकारों को नौकरियां खोनी पड़ती हैं। कोई सरकार हो, आज की सरकार के हम संदर्भ में बात जब करते हैं तो हमें समझना चाहिए, कोई सरकार हो, वो सरकार नहीं चाहती कि मीडिया उसके बारे में बहुत क्रिटिकल हो। कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं ये कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी जो है उसके राज में कोई मीडिया इतना क्रिटिकल हो। चाहे वो, मैंने जिनके दौर देखे हैं, मैं वो कह सकता हूँ कि चाहे वो राजीव जी हों, चाहे वो मनमोहन सिंह हों, चाहे आज के सरकार की बात करें, कोई भी, तो पत्रकारों की नौकरियां हर दौर में जाती है। एक बात। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं कि जो है, जो पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि जो पत्रकार हैं उनको अपनी बात कहने की आजादी नहीं मिलती। मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूं, लेकिन आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेगी कि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। आप उस एडिटोरियल पॉलिसी के साथ बंधे हैं। फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में आप जो है, आप किसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी जगह पर जुड़ते हैं, आपको उसकी एडिटोरियल पॉलिसी मालूम होनी चाहिए कि उसकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। जैसे हमारी एडिटोरियल पॉलिसी, डीडी न्यूज की एडिटोरियल पॉलिसी जो है, हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि हम किसी भी खबर को लेकर के हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है। कई बार हमारे मेहमान करते हैं, मेरे शो में करते हैं, मुझे उनको रोकना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है, क्योंकि वो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उन पर तो मेरा बस नहीं है। लेकिन हम कभी भी जो है, आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़े चैनल पर जो है ओवैसी और एक उत्तर प्रदेश के एक नेता को बैठा के प्रोग्राम चल रहा था, और उसमें जो है ओवैसी के पीछे चांद सितारा और एक बीजेपी नेता के पीछे जो ओम का निशान और पीछे तराजू बना दिया गया था, और वो तराजू जो है हिंदू मुस्लिम को दिखा रहा था ऊपर नीचे। ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, ना हमें करना है। दूसरी हमारी एडिटोरियल पॉलिसी जो दूरदर्शन के संदर्भ में बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। दूरदर्शन के संदर्भ में हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि हम किसी भी आरोप को कथित आरोप ही कहेंगे जब तक कि उसके बारे में पुख्ता चीज नहीं हो जाती। हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि जब कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो तो हम उस पर अपनी राय नहीं देंगे, ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है। अगर आज मैं इस एडिटोरियल पॉलिसी को नहीं मानूं, मैं कहूं कि मैं तो जी ये मामला अदालत में चल रहा है, मैं तो इस पर फिर भी शो करूंगा, तो क्या मुझे इस चैनल में रहने का हक है? नहीं है, क्योंकि चैनल कई सारी चीजों से चलता है। चैनल मेरे नाम से नहीं चल रहा, चैनल की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है। चैनल में ये तो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, लेकिन कोई अगर प्राइवेट चैनल है, उसमें मालिकों ने कुछ इन्वेस्ट करा है, पैसा इन्वेस्ट किया है। वो मालिक इसलिए अखबार नहीं निकाले कि आपको वो पर्सनली आपका अपनी बात कहने की इजाजत देने के लिए, आपको अपनी पर्सनली बात कहनी है, आप अपना यूट्यूब चैनल चलाइए, लेकिन चैनल की तो एक एडिटोरियल पॉलिसी है ना। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं जिस चैनल में, उस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। अगर मेरे डीडी, मैं बहुत जगह देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है। कई पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल जो है वो बात बोलता हूँ। अरे मतलब आप अपने चैनल पे कुछ और हैं, आप पर्सनल लाइफ में कुछ और हैं, इसका मतलब आपके दो फेस हैं क्या? मैंने आज तक अपने
ट्विटर पे नहीं लिखा कि ये व्यूज मेरे पर्सनल है। अरे भाई, ये व्यूज मेरे पर्सनल ही हैं, जाहिर सी बात है, ट्विटर हैंडल मेरा है, लेकिन मेरे पर्सनल व्यूज मेरे चैनल पर भी मैं कैरी करता हूं, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूं, मेरे दो चेहरे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अशोक श्रीवास्तव जो है ट्विटर पे कुछ और हो और अशोक श्रीवास्तव अपने शो में कुछ और हो। मैं दो नहीं हो सकता हूं, मैं एक ही हूं। तो आप या तो, अगर आपके पर्सनल व्यूज आपके चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी से क्लैश करते हैं, तो या तो आप उसको मत दीजिए, नहीं तो आप उस चैनल को लात मार के निकल जाइए। आप उसी चैनल में रहना चाहेंगे और अपनी बात, अगर मेरे चैनल की पॉलिसी ये है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है अपनी बात अगर आज मेरा चैनल, अभी मुझे इस बात की इजाजत है, हमारे इस तरह की पॉलिसी नहीं, हमारे यहाँ भी एक जो है सोशल मीडिया पॉलिसी है, लेकिन उस सोशल मीडिया पॉलिसी में ये नहीं लिखा कि अशोक श्रीवास्तव अपनी बात नहीं कह सकता। लेकिन आज अगर मेरी चैनल की पॉलिसी चेंज होती है, सोशल मीडिया पॉलिसी किसी भी वजह से चेंज होती है, कि उसमें अगर ये आ जाए कि आप अपने पर्सनल व्यूज नहीं देंगे, आप सिर्फ जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उन प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपना सोशल मीडिया हैंडल को उपयोग करेंगे, अगर ये हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं तो यही रहूंगा, अपनी बात करूंगा जी, आपको जो करना हो। तो कल को मुझे निकाल दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे एडिटोरियल पॉलिसी समझनी है कि मैं जिस जगह पर हूं उस जगह की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, और हर चैनल की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है। आज अगर मैं दो चैनल का नाम लूं, एनडीटीवी, जी टीवी, दोनों की एडिटोरियल पॉलिसी बिल्कुल विपरीत है एडिटोरियल पॉलिसी। तो आप अगर जी टीवी की मानसिकता वाले हैं, आप अगर एनडीटीवी में काम करने जाएंगे तो आपको वहां फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आप कहेंगे मुझे मेरी बात करने की इजाजत नहीं दी जाए। लेकिन आप अगर एनडीटीवी की मानसिकता से जुड़े हैं, लेकिन आप जी टीवी में काम करेंगे, तो अभी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो मेरा मानना है कि जहां पर आपको जॉब करनी है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी एडिटोरियल पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं ये नहीं मानता हूं कि, मैं फिर कह रहा हूं कि ये नहीं है कि आज लोगों को निकाला जाता है, ये हर दौर में होता है मेरे भाई नितिन जी, हर दौर में होता है, पत्रकारों को निकाला जाता है और हर दौर में ऐसा होता है। लेकिन मैं किसी पर्सनल केस पे नहीं जानता जाता, लेकिन बहुत सारे पत्रकार अलग अलग कारणों से भी निकाले गए थे। जरूरी नहीं है कि वो इसलिए निकाले गए थे कि उनकी निजी सोच क्या थी या वो निजी रूप से वो करना चाहते थे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पारदर्शिता, बहुत बढ़िया शब्द है, और इस पारदर्शिता के लिए मैं, अशोक श्रीवास्तव, पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। 5 साल से, 5 साल पहले मैंने खबर देखी थी, क्विंट नाम की एक वेबसाइट है, उस क्विंट की वेबसाइट ने खबर चलाई कि भूषण जाधव रॉ एजेंट हैं। और उस क्विंट ने एक वेबसाइट खबर चलाई कि उसने सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव। आप सोचिए कि इंटरनेशनल अदालत में, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान जो है इस मामले पर कोई सबूत पेश नहीं कर पाया और पाकिस्तान को वो केस हारना पड़ा। पाकिस्तान भारत से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में वो केस हारा कि कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने अपने पक्ष में 4 चीजें दी थी और उसमें उन्होंने भारत के पत्रकारों की रिपोर्ट दी थी और कहा कि देखिए, भारत के पत्रकार कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट है। तो मेरे मन में जिस दिन क्विंट ने ये खबर दी थी, मेरे मन में ये सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरे मन में सवाल आया, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खबर जो है प्लांट की गई है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आईएसआई ने पैसा देकर, क्योंकि ये चीजें होती हैं मीडिया में। तो मैंने उस दिन एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने सभी पत्रकारों को चिट्ठी लिखी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखी, और आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। मैं इस बात पर कायम हूँ कि हम जितने भी पत्रकार हैं और जितने भी जो मीडिया जो इंस्टीट्यूट जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो जी टीवी हो, एनडीटीवी हो, एनडीटीवी के मालिक हो, जी टीवी के मालिक हो, चाहे वो अशोक श्रीवास्तव हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, कि हम सबको, मेरा मानना है कि हम सबको अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। हम सबको भारत सरकार एक पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी कार्ड देती है और वो पीआईबी कार्ड के लिए हमें हर तरह की, कई तरह की सुविधाएं मिलती है। वो पीआईबी कार्ड सरकार की तरफ से हमें मिलता है। मेरा ये मानना है कि वो पीआईबी कार्ड जो है उसके लिए हमको हर साल अपने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि हर साल में उसका रिन्यू होता है। तो मैंने उसके लिए एक मॉडस ऑपरेंडी दी थी। मैंने कहा था कि हर साल जब हम अपने पीआईबी कार्ड के रिन्यूअल के लिए अपनी जब जानकारी देते हैं
तब हम अपना इनकम टैक्स फाइल और हमारी जो संपत्ति है, हमारे कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कारें हैं, वो सब चीजें हम पीआईबी को दें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और किसी भी नागरिक को, देश के किसी भी नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए कि वो पीआईबी में एक आरटीआई फाइल करे। नितिन जी, आपको ये अधिकार होना चाहिए कि आप पीआईबी में एक आरटीआई फाइल करें और उसमें आप ये पूछें अशोक श्रीवास्तव के इनकम टैक्स का ब्यौरा पिछले 5 साल का दीजिए और उनकी संपत्ति की लिस्ट दीजिए, और आपको वो जानकारी मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि अशोक श्रीवास्तव की आय कितनी है। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि अशोक श्रीवास्तव की इनकम, उसकी सैलरी इतनी है, और जब आप ये देखेंगे कि अशोक श्रीवास्तव ने 5 साल में सैलरी के रूप में तो इसको 1.5 करोड़ रुपया मिला, लेकिन ये 5 साल में 2 फ्लैट खरीद चुका जो 2-2 करोड़ रुपए के हैं, ये आज ऑडी में घूमता है। तब आप अशोक श्रीवास्तव को ये समझ सकते हैं कि अशोक श्रीवास्तव सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहा, पत्रकारिता के अलावा अशोक श्रीवास्तव कुछ और भी धंधा कर रहा है। और जब मैं कुछ और भी धंधा कर रहा हूं तो जाहिर तौर की बात है कि मैं कुछ गोरख धंधा कर रहा हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में ऐसे पत्रकार हैं आज जिनके पास फार्म हाउस हैं, ऐसे फार्म हाउस हैं, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस हैं, जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके दुबई में, लंदन में अपार्टमेंट हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये पैसा पत्रकारिता का नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो हर पत्रकार को, हर चैनल के मालिक को, हर अखबार के मालिक को अपनी सार्वजनिक संपत्ति का ऐलान करना चाहिए, सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। लेकिन आज तक एक मीडिया कर्मी जो है मेरी इस बात के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जो है, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, हम करप्ट होने पर हम कहते हैं कि फलाना मंत्री करप्ट है, फलाना नेता करप्ट है। पत्रकारिता में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि जो जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना करप्शन है। तो क्या यहाँ पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी लोग आज उंगली उठा रहे हैं। तो हमें पारदर्शिता की जरूरत है। क्या इसके लिए लोग तैयार हैं? ये मेरा सवाल है, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, जो बाकी चीजें की जाती हैं, उसमें वास्तव में कितना कंटेंट है और कितना उसमें जो है फैब्रिकेटेड चीजें, और पत्रकार वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं। सारे सवाल हैं जिन पर हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे सवाल है जिन पर आज चिंतन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। Sir, we do have a few more questions. Ashita Behel, she's a second year student. She wants to know, what do you feel media industry is good now, or was it good before? And what makes it good or bad in the past and present version of media? देखिए, मीडिया इंडस्ट्री पहले जो है, कई कई सारे फेज की अगर मैं बात करूं, एक फेज था जब पूरी तरह से अखबार थे। जाहिर सी बात है उस वक्त इतना प्रेशर नहीं होता था हम पत्रकारों पर। काफी लाइफ जो है स्मूथ होती थी, क्योंकि एक समय आपको दिन में मिल जाता था कि आप अपने लिए कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। एक समय मिल जाता था, सुबह या शाम का कोई समय मिल जाता था। टेलीविजन आने के बाद थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल हो गई है। मुश्किल ये हो गई है कि अब आप सुबह से लेकर रात तक जो आएंगे, जहाँ आपको अपने लिए समय नहीं मिलता, तो एक मुश्किल वो हुई है। लेकिन ये भी हमको देखना है कि अगर ये चीज थोड़ी सी खराब हुई है पहले से, मैं मानता हूँ पहले ये चीज अच्छी थी, बेहतर थी, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते थे, अब रिलैक्स होने का समय नहीं है। एक तो ये चीज फर्क रहा है, लेकिन ये तो एक ऐसा फर्क है जिसको हम कह सकते हैं कि बुरी चीज हुई है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी भी तो ये हुई है, अच्छी ये हुई है कि पहले हमें इतनी ज्यादा प्रशंसक नहीं मिलते थे, इतने लोग नहीं मिलते थे, लोगों का इतना प्यार नहीं मिलता था। आप यकीन करेंगे, जब मैं कश्मीर में जाता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ, देश के किसी कोने में जाता हूँ, जब वहां पर लोग आपको पहचानते हैं, आपका नाम लेकर कहते हैं। मैं डल लेक पर एक बार खड़ा था, और डल लेक के किनारे खड़ा था, तो वहां पर एक शिकारा वाला आया, ऐसी घूमते टहलते मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, और उसने कहा, अशोक श्रीवास्तव अगर आज यहाँ हैं तो दिल्ली में 2 टूक कौन करेगा। तो आप सोचिए कि एक शिकारा वाला जनरली आपको आके पहचानता है, आपकी चीजें अप्रिशिएट करता है, उससे बड़ी खुशी की। पहले अखबार में ऐसा नहीं होता था। तो वो चीजें बुरी चीजें भी थी, अच्छी चीजें भी थी। देखिए, हर दौर में चीजें बदल जाती हैं। आपको अपने आप को उस दौर के अनुकूल बनाना होगा। अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी। पहले पैसा नहीं था मीडिया में इतना, आज पैसा है। मैंने कहा कि मुझे लगता था कि अगर मेरे पास एक स्कूटर होगा तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। आज 4 पहियों की ठीक ठाक सी गाड़ी है, उसको चला लेता हूँ।
लेकिन इसके आगे भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अवसर हैं। तो चीजें बदल रही हैं, कुछ अच्छी चीज हो रही है, कुछ बुरी चीज हो रही है। पहले शोषण कम था मीडिया में, आज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि कम लोग होते थे एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन आज ऐसा है कि किसी भी चैनल में आप देखिए, आज एक व्यक्ति को अगर नौकरी से निकाला जाता है तो 50 लोग खड़े होते हैं, और 50 लोगों में से ऐसे लोग भी होंगे जिनमें से 4 लोग ये कहेंगे कि सर अगर आप मुझे 3 महीने 4 महीने पैसे नहीं भी देंगे तब भी मैं आपके लिए काम करूंगा। तो एक्सप्लॉइट होने वाले भी बढ़ गए हैं, एक्सप्लॉइट करने वाले भी बढ़ गए हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन आज बढ़ गया है, पैसा बढ़ा है तो एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ा है। तो हर दौर की अच्छी बुरी चीजें होती हैं, हर दौर की चुनौतियां होती हैं। आपको अपने आप को उन चुनौतियों के दौर के लिए तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, मैंने अखबार से शुरू किया, जब मैं टेलीविजन में आया तो मैं जब अखबार में काम करता था तो हिंदी अखबार में काम करता था, वहां नुक्ता नहीं लगाते थे, तो नुक्ता नहीं लगाते तो उसको बोलने की आदत भी छूट गई थी। लेकिन जब मैं टेलीविजन में आया तो नुक्ता बोलते हुए नुक्ता को याद रखना है, ये चीज अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आज नई मोजो टीवी आ गया है, आज सोशल मीडिया आ गया, तो आपको उसके लिए भी आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं तो आज ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, लेकिन ट्विटर पर मुझे एक्टिव करने वाले मेरे एक स्टूडेंट थे जिनको मैंने कभी पढ़ाया था, और वो मेरे ऑफिस में एक बार आए, 2012 की शायद बात, 2012-13 की बात है। उन्होंने बोला सर आप ट्विटर पे क्यों नहीं हो? मैंने बोला नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे कमरे में बैठ करके मेरा ट्विटर हैंडल बनाया था, और आज मैं उस स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ। मुझे उस स्टूडेंट से भी ये सीखने को मिला, और आज मेरे वो स्टूडेंट जो है वो टाइम्स नाउ में जो है एंकर हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने उन स्टूडेंट से भी मुझे कुछ सीखने को मिला। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और चीजें और चुनौतियां अपने आप को बहुत तेजी से बदल रही हैं। आपको अपने आपको उस समय के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अच्छी बुरी चीजें हर दौर में रहती हैं, चुनौतियां हर दौर में रहती हैं। हाँ, चुनौतियां आज ज्यादा बढ़ गई हैं, आज मल्टीपल चुनौतियां हैं, उनका सामना आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, शुक्रिया। Thank you. So just a few more questions. Rishabh Patel, he's also a student of second year. He's asking if DD News and Doordarshan have the permission to question strategies of the government. सॉरी, आपका नाम, इनका नाम क्या था? Rishabh Patel. ओके, ऋषभ जी, आप मेरा शो देखिएगा, 2 टूक, रात को 9 से 10 आता है। और डीडी न्यूज में जो पिछले कुछ सालों में जो हमने एक बड़ा बदलाव किया है, वो ये बड़ा बदलाव किया है कि आज पहले हम लोग डिबेट शो नहीं करते थे, हमारे यहाँ पहले विपक्ष को नहीं बुलाया जाता था। आप इस बात को गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ विपक्ष को पहले नहीं बुलाया जाता था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसका श्रेय शायद मुझे है, मैं इस बात को कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर जो लोग हैं उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, और उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम सरकार को भी क्वेश्चन करते हैं, विपक्ष को भी बुलाते हैं। रात 9 से 10 मेरा शो आता है, 2 टूक। उस 2 टूक के शो में हम बाकायदा सरकार से भी सवाल करते हैं, और हम विपक्ष को भी वहां मौका देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे, डीडी न्यूज में आप यकीन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ अपशब्द भी कहे गए हैं? ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम एक बात मानते हैं, देखिए मैं ये बात मानता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो जो भी हो। मैंने 3 देश में जो है 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 3 प्रधानमंत्रियों के विदेश दौरों की मैंने रिपोर्टिंग की, 3 प्रधानमंत्रियों की रिपोर्टिंग की, 3 प्रधानमंत्रियों के लेकर दौरे किए, और 3 प्रधानमंत्रियों को लेकर के मैं डीडी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और आज नरेंद्र मोदी। और एक चीज जो है डीडी न्यूज में जो नहीं बदली, जिसको वो ये कि हम प्रधानमंत्री को मानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर हम उनको लेकर हम क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे वो आपको देखना है। आप प्रधानमंत्री को कुछ भी अपशब्द कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मेरे अपने शो में विपक्ष की तरफ से कई बार प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें ऑन एयर गई हैं, उनको हमने रोका नहीं है। और मैंने खुद जो है बीजेपी प्रवक्ताओं से कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मुझे ये कहा कि आप जो है विपक्ष को छोड़ करके मेरे ऊपर हमलावर हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग, अगर हमारे ऊपर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो इसलिए
ये कहना आपका गलत है, और ये कहना इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रात 9 से 10 का 2-2 का आप देखिएगा, इसलिए नहीं कि मेरा शो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आपने कहा उस बात को लेकर। अभी बीजेपी को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, बंगाल को लेकर, बंगाल की वायलेंस पे कई सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैंने जब 3 दिन पहले जब इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने एक सवाल पूछा, और मेरे ट्विटर हेड टाइमलाइन पर वो चीज है। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछा, मैंने कहा कि जो है आप लोगों ने चुनाव के बाद अपने लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया, आप सेंटर में थे, ताकत में थे, लेकिन आपने क्या किया, आप इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा, और उसके नीचे टाइमलाइन पर लोगों ने मेरे ट्विटर की टाइमलाइन में लिखा कि अशोक जी, ये सवाल आज तक किसी प्राइवेट चैनल ने बीजेपी के सामने नहीं उठाया, जिस बेबाकी से आपने इस सवाल को उठाया, और जिस बेबाकी से आपने इस सवाल पर बीजेपी को क्वेश्चन किया। तो हम लोग सवाल सबसे करते हैं, सवाल सबसे करने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। सवाल आप क्या कर रहे हैं ये भी बड़ा जरूरी है। सवाल आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई सवाल कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि वो आपके सिर्फ आरोप हैं, सवाल नहीं है। चाहे राफेल को लेकर आप देख लीजिए, राफेल को लेकर कितना कुछ कहा गया, बीच में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीच में ये कहा गया कि राफेल को लेकर के देखिए फ्रांस में जो है फिर से जांच शुरू हो गई और एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया, कई चैनल पर वो इश्यू उठा, लेकिन आज वो टाइम फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो जांच हो रही है वो आज की नहीं, वो 2012 की जांच हो रही थी। तो आज जो लोग फ्रांस राफेल का मुद्दा उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, मेरा मानना है इस देश में इंसाफ और कानून और संविधान तो सबसे ऊपर है ना। तो अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो हमें उसको मान्य करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हम अगर कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, वो जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का एजेंडा नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी हम क्या देश की संस्थाओं पर चोट करना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि देश में जो है तालिबानी हुकूमत हो, जहां सुप्रीम कोर्ट ना हो, जहां कोई संस्था ना हो, जहां पर बंदूक के दम पर राज हो? तो वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता। आपको संस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज कह रहा है तो हमें उसका सम्मान करना ही चाहिए। ये इस बात का हम ध्यान रखें। जी, शुक्रिया। Thank you so much, sir. We have a question from Mr. Pramod Pandey. He's a faculty member with us, and asking you a question as a media educator yourself. That why is there a general belief amongst the student community that this discipline of mass communication requires more practical and less theoretical training? And what is your take on the same? देखिए, वो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूं, पत्रकारिता का इतिहास मैंने वो कुछ समय पहले अब मुझे नहीं पता कि उस किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने आज के 5-10 साल पहले वो किताब पढ़ी थी। अब पत्रकारिता के इतिहास को मेरे लिए जानना जरूरी है, लेकिन मुझे जब पत्रकारिता के इतिहास की बात करता हूँ तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस तरह के पत्रकार होते थे, जिनको हम सबको देखना चाहिए। गांधी जी या तिलक जो है उनकी पत्रकारिता की क्या स्वरूप थे। लेकिन बहुत ज्यादा पत्रकारिता का इतिहास पढ़ के मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या आज वो हेल्प करेगा? इन नॉलेज के तौर पर मेरे लिए होना जरूरी है, मैंने कहा। या मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें आज ऐसी पढ़ाई जाती हैं जर्नलिज्म में, जो किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं, उनमें ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो आज आउटडेटेड हो गई। तो वो इंफॉर्मेशन के तौर पर, नॉलेज के तौर पर मेरे पास हो, लेकिन जब मैं फील्ड में उतरूंगा तो क्या मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए जानकारी, जब मुझे उसकी समझ होगी क्या, मैं मेरे लिए वो काम की होंगी क्या, ये मेरे लिए समझना जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि मैं कई इंस्टीट्यूट देखता हूँ, और आई होप कि इस तरह का आपका इंस्टीट्यूट नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं कई इंस्टीट्यूट देखता हूँ, कई मीडिया वो देखता हूँ जो बच्चों को एक बार भी कैमरे के सामने उनको ले जाते नहीं है, एक बार भी कैमरे के सामने ले जाते नहीं है, एक बार कैमरा फेस करने की इजाजत नहीं देते हैं। वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेने से पहले वो लोग दिखाएंगे हमारे पास स्टूडियो है। मैं खुद ऐसे एक इंस्टीट्यूट को जानता हूँ, मैं कुछ समय जुड़ा रहा, लेकिन मैंने अपने आप को वहां से अलग कर लिया, क्योंकि ये काफी पुरानी बात है। उस समय मेरे पास समय था, जाता था, लेकिन मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा बच्चों के साथ चीटिंग है। आप टेलीविजन में बच्चों को आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि स्टूडेंट कह रहा है कि मैं टेलीविजन जो है जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन आप उसको कैमरा फेस नहीं करने दोगे, कैमरा फेस करना उसको सिखाओगे नहीं, आप उसको एंकरिंग करने का मौका नहीं दोगे। अगर एक एंकर बनना चाहता है तो आप उसको एक अच्छा एंकर बनाने के लिए कम से कम उसको कहिए 2 घंटे बैठे ना कैमरे के सामने, करे ना, पढ़े अपने आप को, और पढ़े, न्यूज पढ़े, प्रोग्राम करे,
डिबेट करे और उसके बाद वो अपनी चीजें देखे और फैकल्टी उस चीज को देखे और बताए कि भाई आपकी ये अच्छी चीज थी, ये खराब चीज थी। तो उससे क्या होगा, मैं ये बात मैं इसलिए बड़े देखिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एंकर बनना चाहते थे लेकिन उनको कभी एंकर बनने का मौका नहीं मिला। वो रिपोर्टर थे या डेस्क पे थे, लेकिन सडनली एक दिन कोई ऐसा मौका आया कि उनको एंकरिंग करने का मौका मिल गया। कोई कोई फॉल आउट हुआ चैनल में, हमारे चैनल में ऐसा हुआ कि एक फॉल आउट हुआ और कोई नहीं था उस समय, सडनली जो है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो डेस्क पे था, लेकिन उसने उस दिन ऐसी एंकरिंग करी कि लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा एंकर बन सकता है। वो एंकर बन गया, आज वो एंकरिंग करता है हमारा मित्र जो मेरे साथ है। तो आपको हो सकता है कि आप जो करना चाहें वो न कर पाए, ये बेहद संभावना है क्योंकि पोजीशन लिमिटेड है। लेकिन जिस दिन आपको वो करने का मौका मिल गया, उसके लिए तो आपका इंस्टीट्यूट आपको तैयार करा दे। जब तक आप स्क्रिप्ट लिखनी ही नहीं सीखेंगे, स्क्रिप्ट जब तक आप फील्ड में जाकर एक रिपोर्ट को लिखना नहीं सीखेंगे, क्योंकि फील्ड में जाकर रिपोर्ट लिखना एक अलग बात है, टेबल पे बैठ के रिपोर्ट लिख देना, लेकिन एक जगह पर जाना, वहां से चीजें गैदर करना, लोगों से बात करके उस आधार पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसके बाद उसको लिखना, ये एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है आज के दौर में। अब देखिए मेरे सामने भी अगर कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ और मैं डीडी में काम करना चाहता हूँ, तो मैं उससे एक बार इंटरव्यू कर लूंगा। लेकिन अगला मेरा स्टेप क्या होगा? अगला मेरा स्टेप ये होगा कि मैं उसका ऑडिशन लूंगा। मैं कहूंगा अच्छा आप एंकर बनना चाहते हैं तो आइए आप ऑडिशन दीजिए। अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट जो है 3 साल किसी यूनिवर्सिटी से, किसी किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकला, लेकिन सडनली जब उसको ऑडिशन हो रहा है कैमरे के सामने, वो देख रहा है लाइट्स कैमरा ये वो, और सडनली वो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर मुझे लगेगा कि यार इसमें दम नहीं है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट उसको तैयार करा, बेसिक तैयारी करा के भेजता है, तो वो ऑडिशन भी स्टूडेंट क्लियर कर लेगा इंटरव्यू के बाद। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर। Thank you so much, sir. I'm just putting in the final question that is from Mr. Sachin Nair. He's also a faculty member. And my apologies to the other persons whose questions I cannot take due to the paucity of time. Mr. Sachin Nair is asking, what are the changes brought by the pandemic in journalism, which you think would be permanent in the coming times? देखिए सर, एक तो बड़ा चेंज आया वो ये है कि लोगों ने अब जूम, स्काइप और मोजो पर बहुत ज्यादा लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। तो एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये आया है, और ये जो चेंज है ये बना रहेगा। क्योंकि ये कई लोगों को सूट भी कर रहा है। मैं जब शो करता था तो पहले मैं गेस्ट स्टूडियो में बुलाता था, और स्टूडियो में गेस्ट बुलाता था, मेरे सारे गेस्ट स्टूडियो में होते थे जब मैं डिबेट शो करता था। आज मेरा स्टूडियो में कोई गेस्ट नहीं होता क्योंकि कोई आना नहीं चाहता, हम भी चाहते नहीं कि बाहर से लोगों को स्टूडियो में बुलाया जाए। तो आज मेरे ज्यादातर जो सब गेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन जुड़ते हैं। अब ऑनलाइन जुड़ने में एक चीज ये हुई कि पहले स्टूडियो में आते थे बहुत सारे लोग, तो कई चैनलों ने ऐसा किया कि ऑनलाइन में जब स्टूडियो में गेस्ट आते थे तो उनको या तो आने जाने के लिए गाड़ी देनी पड़ती थी, या फिर उनको जो है साथ साथ जो है एक पैसा, एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता था। लेकिन अब ये टेक्निक जब आई तो कई लोगों को लगा रहे अपने घर से बैठ के तो कर रहे हैं, तो इसमें पैसा क्यों देना है। तो कई चैनल्स ने जो है ये चीजें बदल दी। उन्होंने जो है पैसा वैसा देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर बैठ के कर रहे हैं मोबाइल से, तो क्या आपका गया, तो लोगों को गाड़ी नहीं। तो कई चीजें ये सूट कर रही हैं, जो है चैनलों को भी सूट कर रही हैं। तो ये इनमें से कुछ चीजें परमानेंट होंगी। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि देखिए ये टेक्निक जो है, आज भी जो टेक्निक के माध्यम से हम डिबेट करते हैं उसमें वो रस नहीं है, वो एंजॉय नहीं है जो स्टूडियो में बैठकर। हालांकि एंजॉय का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडियो में जब गेस्ट आते थे तो एक मौलाना साहब ने एक महिला को थप्पड़ मार दिया, उस तरह के रस की बात नहीं कर रहा हूँ। या एक टेलीविजन एंकर ने, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने दूसरे प्रवक्ता के ऊपर ग्लास फेंक मारी, तो वो सब चीजें मैं रस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो है कई बार ऐसा होता था कि आपको वहां पर सुनाई नहीं पड़ रहा है, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो आज भी मैं चाहूंगा तो कि मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में हो, डिबेट करने का रस, आनंद उसी में आएगा। लेकिन कई बार चैनल को कुछ और चीजें सूट करती हैं तो चैनल कई बार उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चेंजेस बनेंगे। मोजो
चीज मोजो आने के बाद जो है वो ये हो गया कि अब निर्भरता आपकी कैमरामैन पर कम हो गई। वो चीजें बनी रहेंगी, क्यों? क्योंकि वो चैनल्स को सूट करता है, क्योंकि उनको अब 2 लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे, वो एक आदमी से काम चला लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि कई जगह पर आप सोचिए ना, अगर हमको यहाँ से कश्मीर जाना, एक टाइम था कि जब दूरदर्शन, मान लीजिए हमारा, मैं अपनी बात कहूँ, मैंने वो भी दौर देखा, जब हम लोग जाते थे दिल्ली के बाहर जाते, तो हमारे यहाँ 4 लोग ट्रेवल करते थे, एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक जो है साउंड और जो है इंजीनियर जाता था, एक और असिस्टेंट जाता था, कैमरा असिस्टेंट जाता था। तो 4 लोग ट्रेवल करते थे। 4 लोग का मतलब है कि आपको आपकी हवाई टिकट ही जो है आपकी, अगर मान लीजिए कि 15-15 हजार की एक आदमी, तो आपके 1 लाख रुपए तो आपकी हवाई टिकट में ही चले। उसके बाद 4 लोगों के रहने खाने का सबका चैनल को बियर करना पड़ता है। लेकिन आज साउंड इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आज कैमरा असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें धीरे धीरे अब आउटडेटेड हो गई, नहीं है उनको कोई यूज करता। तो अब क्या होगा कि अब मोजो टीवी आने के बाद जो है चैनल्स को सूट कर रहा है कि भाई अगर एक ही व्यक्ति जाके कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो एक ही व्यक्ति सब कुछ कर ले। और कई बार जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी सेंसिटिव एरियाज में 2 लोगों के जाने से बेहतर होता है एक आदमी अगर खुद जाके मोबाइल पे कर सकता है। तो ये चीजें आने के बाद ये चीजें जो है बनी रहेंगी। इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं जाएंगी, ये चीज एज इट इज रहेंगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो चीजें हैं बदली हैं, वो चीजें वापस अपने शेप में आएंगी। लेकिन कब आएंगी ये कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने जहां शुरू में कहा था कि कोरोना कब एक्चुअल में हम इससे पूरी तरह से उबर पाएंगे। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी कई जगह पर जो है चीजें वापस आ रही हैं, नए रूप में आ रही हैं, तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, चीजें बदली हैं और हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, बदलाव के अनुरूप हमको खुद को ढालना भी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, Mr. Ashok Srivastav. It was a wonderful session. And I invite our head of department, Dr. Susmita Bala, to deliver her vote of thanks to you. Thank you, Sukriti. Thank you, Ashok ji, for sharing experience in such a way, simple and interesting. So, आपने जो भी कहा, like quality education की बात की, भाषा की पकड़ की बात की, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन है, तो वाकई में स्टूडेंट्स को अपने को प्रूव करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी स्थिति सही बना सकते हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारी बातें की, नॉलेज लेवल की, क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन है तो उसे प्रूव करना है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ जितनी भी चुनौतियां हैं उनके साथ में अवसर भी हैं। तो अवसरों की बात भी आपने की, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट करना इसलिए जरूरी है। और जहां तक डिजिटल मीडिया की बात है, तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद, जैसा आपने भी कहा, ना तो टीवी न्यूज मीडिया खत्म होने वाला है और ना ही प्रिंट मीडिया। ये बात अक्सर उठती है कि प्रिंट मीडिया फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो जाएगा डिजिटल मीडिया के आने के बाद। तो ऐसा नहीं है, सारे मीडिया साथ साथ चलेंगे और सारे लोग हर इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में अपने को प्रूव करना पड़ेगा। मीन्स हर जगह अपने को कंटेंट पे काम करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पे ध्यान रखना है, दोनों पे अपने पकड़ बनानी है। अभी जैसा कि प्रमोद का क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत तो है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन विद थ्योरेटिकल नॉलेज। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ठीक है, हिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे बुक्स लाइक टीवी प्रोडक्शन है, रेडियो प्रोडक्शन है, उसमें हमें काफी चीजें, या कैमरा रिलेटेड बुक्स हैं, उनसे हम अगर थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें प्रैक्टिकली वर्क करना आसान हो जाता है। तो उसको भी अगर हम दोनों को साथ साथ करेंगे, और चूंकि हमारे इंस्टीट्यूट अभी कोरोना पीरियड में स्टूडेंट अभी स्टूडियो में उतना नहीं जा रहे हैं या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज रेडियो में, जैसे मेरे पास रेडियो पेपर होता तो मैं ऑनलाइन भी उनकी रेडियो में प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो टीवी में भी ऐसा ही है, स्टूडियो अपने हाथ से स्टूडेंट अपने आप स्टूडियो में आते हैं, कैमरा हैंडल करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो काफी कुछ सीखते हैं। तो
स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं. We are always ready to help all students. अभी थोड़ा सा हम ग्रेजुअली स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू करेंगे कि स्टूडेंट्स आए और उनकी लर्निंग और स्ट्रांग हो. और जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आउटस्टैंडिंग बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, वो स्टूडेंट को अमल में लाना होगा, वो बहुत जरूरी है. So thank you, sir. Thanks for your experience and for interaction. Thank you. Thanks to all of you. शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Bala ma'am, so much for your words. And I'd like to extend my vote of thanks to Mr. Ashok Srivastav for joining us today, for taking out the time. It was indeed, as Bala ma'am said, it was a very wonderful session, very insightful. You brought to the forefront a lot of pertinent issues and real issues that a journalist would face. And your answers were also sometimes our questions can be biased, but your answers were not. Your answers were very on point, and I also gained something new from them. So thank you so much, sir, for joining today. I would also like to thank Dr. Amrish Saxena and Dr. Smita Bala for the conceptualization of the session orientation program. I'd like to thank the management of DME for their constant support and guidance to the DME Media School, and to my fellow faculty members who are constantly working towards making every such event successful, whether technically or in the coordination or by putting in questions and supporting the students. And lastly, thank you to the audience, our students of semester 5 and 3 who joined us today, and you've been a very active audience, and we are very happy to have you with us. Once again, welcome to your new semesters. You've entered into your new years. So about the next sessions that are upcoming, for semester 5 students, we have a next session with Dr. Uma Shankar Pandey for new media at 11:30 a.m. And for semester 3, your classes will go on right now, and then later on, your session on development communication will happen with Dr. Sarvesh Dutt Tripathi at 1:50 p.m. Links will be shared in the chat box. So thank you all. This is us signing off. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू अमरीश जी, सुकृति जी और सुष्मिता जी. नमस्कार. नमस्कार. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons, and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong, and resilient for any times to come.
we empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is spark. They organize the program themselves, they take their own decisions, and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents, and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways.